Hello students, this is Vinita, science teacher of class 8. Hope you all are fine there. This is my second video of chapter 1 crop production and management. Students, have you done your homework? Isn't it very easy for you all? Before starting the new topic, I am going to recollect the previous topics. Okay. These are the topics that we have already learned. Please listen. First one was agriculture. I told you that what is agriculture. Agriculture means the growing of plants for food and for other purpose. This term is known as agriculture. जो फूड के लिए प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ फूड. फूड की आवश्यकता क्या है? फूड गिव्स अस एनर्जी and we utilize this energy for various body functions such as digestion, respiration and excretion, isn't it? Yes. नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ फूड. सोर्सेस ऑफ फूड क्या है? वो कहाँ से हमको फूड मिलते हैं? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस फूड ऑन ए लार्ज स्केल. एज आई टोल्ड यू दैट फूड इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, सो इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल. सो वी हैव टू follow the 3 steps, that is regular production, proper management and distribution. Next the topic was early agricultural practices. जो early agricultural practices क्या क्या है? वो early टाइम में when wandering करते थे, है ना, वो कच्चे fruits और vegetables खाते थे और वो they started hunting animals also. Later they started cultivation and what they cultivated firstly, they cultivated wheat, rice and also the other products. This was the born of agriculture. Next, about the crops. What are crops? What are the different types of crops? What are crops? When the plants of same kind are grown in a particular area on a large scale, that is known as crops, है ना. Next, different types of crops क्या क्या है? rabi crops है, kharif crops है. Based on the seasons, crops are classified into 2, that are kharif crops and rabi crops. खरीफ क्रॉप मतलब द प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन. जो रेनी सीजन में उगाए जाने वाले क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट रैबी क्रॉप्स. द रैबी क्रॉप्स मतलब जो प्लांट्स हम विंटर सीजन में उगाने जाने वाले हैं क्रॉप्स को हम कहते हैं रबी क्रॉप्स. द एग्जाम्पल्स ऑल्सो मैंशन इन द प्रीवियस क्लास. नेक्स्ट, वाई पैडी कैनॉट कल्टिवेट इन विंटर सीजन. It is because paddy is cultivated in the winter season, not cultivated in the winter season because paddy needs a lot of water, so it is cultivated only in the rainy season. Isn't it clear? Okay, now we are going to today's topic. Okay children, students, we are moving to our topics. That is, today I am going to discuss page number 2, 3 and 4. Okay, I will zoom the portion that I am going to read now so that you will see it properly. Basic practices of crop production in page number 2. Why paddy cannot be grown in winter season? That we have already discussed. Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. That we have discussed. Next, look at the below sentence. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. एक गार्डनर या आप अपने गार्डन में प्लांट्स उगाने के लिए क्या क्या करते हैं? डायरेक्ट आप प्लांट्स उगाते हैं? नहीं, इसके पहले आप उस सॉइल को थोड़ा पलटते हैं, वो सॉइल थोड़ा लूज करते हैं, है ना. क्यों वो ऐसा करते हैं? क्यों आप पलटते हैं थोड़ा? बिकॉज सो दैट द रूट्स विल पेनेट्रेट डीपली इनटू द सॉइल. तो किसान भी एक खेत में सेम प्रोसेस करते हैं. जो किसान क्या करते हैं? फसल उगाने के लिए एक किसान को सामयिक अवधि में कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ता है ना. जो एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस.
And which are the agriculture practices? There are 7 agriculture practices: preparation of soil, sowing, irrigation, adding manures and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. You got it? Yes. So for growing a crop, the farmer has to undergo certain activities in a sequence over a period of time, and such activities we are called as the agricultural practices. The agricultural practices are listed below. You can see that. Look here. These are the agricultural practices. Which are they? Preparation of soil. एक क्रॉप उगाने के पहले हम सॉइल को तैयार करना है, मिट्टी को तैयार करना है. नेक्स्ट सोइंग, बुआई. नेक्स्ट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो कुछ हम इसमें डालते हैं फर्टिलाइजर्स. क्यों? वो सॉइल का क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं. मैन्योर्स मतलब ऑर्गेनिक है. फर्टिलाइजर्स मतलब वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं. नेक्स्ट इरिगेशन, वो हम वाटर सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर वीड्स. वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है दैट आर ग्रोइंग इन बिटवीन आवर क्रॉप्स. दे विल डिस्ट्रॉय एंड दे विल बी हार्मफुल फॉर आवर plants, so we have to protect our plants from these weeds. Next harvesting मतलब जो grown up हो गए तो वो हम कटाई करना है. नेक्स्ट स्टोरेज, इतना सारा फूड क्रॉप्स हमको स्टोर करना है ना. These are the agriculture practice. The farmer have to undergo all these agriculture practices. Okay, so the first one is preparation of soil. मिट्टी को तैयार करना है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, लुक हियर. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. एक क्रॉप ग्रो करने के पहले हम जो मिट्टी तैयार करना है ना. यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न एंड लूजन द सॉइल. स्टूडेंट्स, इफ ए फार्मर want to cultivate a crop in a land, if he is going to a field, then what will be the texture of that soil? That soil is become very hard and dry, isn't it? Yes. So in order to start growing the crop, he has to turn and loosen that soil, है ना. जो मिट्टी उसको थोड़ा पलटना है और इसे पोला बनाना है, वो लूजन करना है. इसको हम कहते हैं पोला बनाना है ना, लूज करना है. जो मिट्टी एकदम कड़क है ना, वो मिट्टी सब लूज करना है और थोड़ा टर्न भी करना है. सो दिस allows the root to penetrate deep into the soil. ये टर्निंग एंड लूजनिंग के वजह से वो रूट्स को, वो जड़ें हैं ना, रूट्स है ना प्लांट्स को, वो रूट्स को एकदम डीप सॉइल के अंदर जा सकते हैं. द लूज सॉइल अलाउड द रूट्स to breathe easily when they go deep into the soil. If the root is going very deep into the soil, it can easily breathe. It will get oxygen. वो गहराई तक जा सकते हैं रूट्स को अच्छे से श्वसन कर सकते हैं. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? It's a question. I am telling the answer. Please listen. Loosening of soil allow the roots to breathe easily because it allows them to penetrate deep into the spaces in between soil particles which have air trapped in them. वो डीप सॉइल में, एकदम गहराई में मिट्टी, डीप सॉइल में क्या होते हैं? ऑक्सीजन का सॉइल पार्टिकल्स है. वो इसमें वो सॉइल पार्टिकल्स से बीच में वो एयर ट्रैप होते हैं. वो ऑक्सीजन कंटेंट ट्रैप होते हैं. तो इफ आवर रूट्स आर गोइंग डीप इनटू द सॉइल, द रूट्स कैन absorb that oxygen very easily. So the loosening of soil thus help the roots to breathe easily. Isn't it clear? I will give the answers after this session. So don't bother about that, children. Okay. Next, look the next paragraph. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil.
जो हम लूसन करते हैं ना सॉइल को, इससे दूसरा एडवांटेजेस भी है। वो क्या है? द लूसन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अर्थवर्म्स को पता चला ना, वो अर्थवर्म्स मतलब केचुओ, वो अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स मतलब वो मिट्टी में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जो ऑर्गेनिजम्स है वो सूक्ष्म जीवियों है, उसको हम हमारे नेकड आई से देख नहीं सकते। वो मिट्टी में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जो लूसन हम किया ना, तो वो इट हेल्प्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो हम लूसन करने की वजह से वो मिट्टी में अर्थवर्म्स और माइक्रोब बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं। वो अर्थवर्म और माइक्रोब्स ग्रो करने का एडवांटेजेस क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. So if the earthworms and microbes are again growing in the soil, what they will do? They will further turn and loosen the soil and add humus to it. वो फिर से सॉइल को लूसन और टर्न करते हैं। इसके वजह से वो एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो प्रोड्यूस को हम कहते हैं ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस? दैट आई विल डिस्कस यू लेटर, ओके। बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूसन? The two advantages of the turning and loosening we have already discussed in the above paragraph. First one was the loosening of soil will help the root to penetrate deeply into the soil, so that they can breathe easily, so they can breathe the oxygen very easily. Next, the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. And the earthworms and microbes क्या करते हैं? जो मिट्टी को फिर से वो टर्न और लूसन कर सकते हैं। इसके वजह से क्वालिटी भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट, और जो वो एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, वो सब्सटेंस को, वो चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है वो इसका आंसर मैं लेटर में बताती हूँ आपको। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूसन? Again we are saying the advantages of this loosening and turning the soil. You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. जो आप पहले क्लासेस में पढ़े चुके हैं कि सॉइल में क्या क्या है, मिनरल्स है, वाटर है, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट decomposed by the soil organisms. वो dead plants or animals, they are going to the soil. The dead organisms, the dead plants and animals are just a pollution for the environment. But if they are going to the soil, what they will do? Look, they will shortly decompose into other organic substances, organic matters such as carbon dioxide, water, minerals, etc. Bodies of the living organisms began to decompose shortly after the death. वो डेथ होने के बाद वो डायरेक्ट मिट्टी में जाते हैं, वो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन होते हैं उसको, बॉडी को। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन मतलब जो एक डेड प्लांट्स या एनिमल्स जो कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू nutrients, minerals, carbon dioxide, etc. So that waste material is directly converted into a good high quality material. So that process is known as decomposition. And these earthworms and microbes, they help to decompose these dead plants and animals. Students, I have used a word humus. You remember? Yes, humus. Humus means the organic components of soil formed by the decomposition of plants and animals by the soil microorganisms. जो soil microorganisms कौन कौन है? वो microbes and earthworms. वो क्या करते हैं? वो dead plants और animals को decompose करते हैं। एंड ये डिकम्पोज करते के बाद वो एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। ये सब्सटेंस को हम कहते हैं ह्यूमस। एंड यू कैन सी दैट ब्लैक
सब्सटेंस है ना, इसके हाथ में जो है ह्यूमस, वो ह्यूमस is the decomposition, is the product that is formed by the decomposition of the dead plants and animals, and it is a thick black or brown substance. Humus has many nutritious values which improves the health of the soil. High quality soil leads to high quality food products also, isn't it? Now look at the last paragraph of page number 2. Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जो हम मिट्टी के अंदर वो डीप में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, सब है, ह्यूमस भी है, लेकिन वो प्लांट ग्रोथ वो कुछ सेंटीमीटर में होते हैं, हम इसके ज़्यादा प्लांट ग्रोथ नहीं होते है ना. सो बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, दैट बॉटम लेवल में वो सॉइल है ना, वो टॉप लेवल में आएगी है ना. जो लूजन करने के और टर्न करने के वजह से बॉटम सॉइल विल कम टू द टॉप ऑफ द सॉइल. Thus, the turning and loosening of the soil is very important for the cultivation of crops. Page number 3 में. So, loosening of the soil is very important for the cultivation of crops. एक crops उगाने के लिए जो सॉइल को प्रिपेयर करना है, कैसे वो सॉइल को लूसन और टर्न करना है. सो ये पैराग्राफ में हमको वो लूसनिंग और टर्निंग का बहुत सारा एडवांटेजेस मैंने बोला, मैं फिर से रिपीट करना चाहते हो. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन वंस अगेन केयरफुली. Student, listen once again. Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. एक क्रॉप उगाने के पहले मिट्टी को तैयार करना. कैसे तैयार करेंगे हम? जो हम लूसन और टर्न करते हैं, हम मिट्टी को पलटते हैं और पोला बनाते हैं ना. वो इससे फ़ायदा क्या है? जो लूसनिंग और टर्निंग के वजह से दिस अलाउ द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल. रूट्स एकदम गहराई तक जा सकते हैं, इसके वजह से वो ऑक्सीजन हम रूट्स को ब्रीथ कर सकते हैं अच्छे से. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? द सेकेंड पैराग्राफ में, द लूसन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स रहते हैं वो इफ़ यू आर लूसनिंग द सॉइल इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स. जो लूसन करने मिट्टी में अर्थवर्म्स और माइक्रोब रह सकते हैं. अर्थवर्म्स मतलब केचुआ, माइक्रोब्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको हम हमारे नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. जो अर्थवर्म्स को हम कहते हैं जो दे आर किसान का मित्र है, ये अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स. वाई? बिकॉज they further loosen and turn the soil. माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स अगेन दे विल मिट्टी को पलटते हैं है ना, और लूसन भी करते हैं, और वो एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमस. वो मैंने आपको शेयर किया इसका पिक्चर, वो थिक ब्लैक कलर का है. जो ह्यूमस कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो नेक्स्ट पैराग्राफ में. You have learned that in previous classes soil contains mineral, water, air and some living organisms. मिट्टी में बहुत सारा मिनरल्स रहते हैं, वाटर कंटेंट है, एयर कंटेंट सब रहते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स दे विल directly go into the soil and they are decomposed by these earthworms and other microbes. And the word decomposition matlab it means the process of converting the dead organisms and substance into simple organic matter such as water, minerals, nutrients, carbon dioxide, etc. जो डेड एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं दूसरे चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, लाइक वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. वो प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन. वो डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स करते हैं. और डिकम्पोजिशन के बाद वो एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं ह्यूमस.
ह्यूमस का पिक्चर मैंने शेयर किया, आपको फिर से देखना है तो मैं एक बार भी आपको दिखाती हूँ. Look children, this is the another picture of humus. This is also humus. Humus, its color is thick black और brown color है ना. आपको देख सकते हैं. जो कौन प्रिपेयर करते हैं ये ह्यूमस? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ ए थिक ब्लैक और ब्राउन सब्सटेंस. ह्यूमस हैज़ मेनी न्यूट्रिशियस वैल्यूज रहते हैं उसको, विच इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ द सॉइल. जो सॉइल का क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, है ना. सॉइल का क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं तो क्या फ़ायदा? जो डायरेक्ट प्लांट्स को भी वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए हमको गुड क्वालिटी फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना. Look at the last paragraph. Since only few centimeter of the top layer of the soil support plant growth. Plant growth a few centimeter support करते हैं ना, तो turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जो bottom में बहुत सारा nutrients रहते हैं, वो bottom का nutrients top position में आएंगे. किसकी वजह से? वो turning और loosening की वजह से. So look the third page. Turning and loosening of the soil is very very important for the cultivation of crops. That's our conclusion of this topic, isn't it children? Next, look at the below paragraph. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. Very very important sentence है, please underline. The process, पेज नंबर 3 में सेकंड पैराग्राफ में आपको देख सकते हैं. The process of loosening and turning the soil is called tilling or plowing. जो मैंने बोला, कितने बार मैंने बोला, सॉइल को टर्न करना है, लूसन करना है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए टर्निंग और लूसनिंग करना है. मैं सारे वर्ड्स वो ये लूसनिंग टर्निंग है ना, मैं ये वर्ड यूज़ किया. लेकिन ये लूसनिंग और टर्निंग क्या है? जो प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग, TILLING, टिलिंग और प्लाविंग, PLOUGHING, प्लाविंग. जो प्रोसेस को, लूसनिंग और टर्निंग प्रोसेस को हम टिलिंग भी बोलते हैं, प्लाविंग भी बोलते हैं. कॉमनली वी आर यूजिंग द वर्ड प्लाविंग. दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाव. टिलिंग और प्लाविंग करने के लिए हमको एक टूल चाहिए. किससे हम टिलिंग करते हैं या प्लाविंग करते हैं? यूजिंग ए टूल दैट इज प्लाव. प्लाव आर मेड ऑफ वुड और आयरन. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग. जो सॉइल ड्राई होते तो हम प्लाविंग करने के पहले, मैंने बोला वो ड्राई होते हैं फील्ड. ऑफ कोर्स द फील्ड विल बी ड्राई एंड हार्ड, सो वी हैव टू बिफोर plowing we have to water it. So plow, once again I am reading the sentence because it is very important. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. जो loosening और turning करने, वो पलटना और पोला बना, वो प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग या प्लाविंग. दिस इज मेड बाय यूजिंग ए प्लाव. कौन से टूल यूज करते हैं? प्लाव यूज करते हैं हम. प्लाविंग या टिलिंग प्रोसेस हम करते हैं. प्लाव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन. वुड में भी बन सकते हैं वो, आयरन प्लाव भी होते हैं, वुड का प्लाव भी होते हैं. आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ प्लाविंग. ओके, प्लीज लुक द students. This is how a farmer is doing the plowing process. Okay, in your textbook you can see that tool plow, so please look at the textbook students. This is the picture of the tool plow. Now we are going to the above paragraph. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. It is done by using a plow. Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may be need watering before plowing. जो मिट्टी बहुत कड़क है तो हम प्लाविंग करने से पहले मिट्टी में पानी डालना है. If the soil is very dry, it may be need watering before plowing. The plow field may have big clumps of soil called crumbs. जो प्लाविंग करने के बाद भी वो थोड़ा क्लम्प्स होते हैं, मिट्टी का वो
क्रम्स होते हैं, इसको हम क्रम्स कहते हैं। जो क्या है वो मैं आपको शेयर करती हूँ, वो प्लाउड फील्ड का पिक्चर में शेयर करती हूँ। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, जो क्रम्स हमको तोड़ना है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जो हम वो क्रम्स सब तोड़ के वो मिट्टी को लेवल करना है, वो लेवलिंग करने का एडवांटेज वो हमको सोविंग और इरिगेशन में मिलते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। वो लेवलिंग करने के लिए वो मिट्टी का वो क्रम्स है ना, वो क्रम्स तोड़ करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं लेवलर। लेवलर का पिक्चर भी मैं शेयर करती हूँ। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। ये प्लाविंग और टिलिंग प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस करने के पहले हम मिट्टी में मैन्योर डालते हैं। वो डालने के क्या फ़ायदा है, तो अच्छे से वो मिक्स हो जाएंगे, वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स वो सब मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द पिक्चर ऑफ ए प्लाउड फील्ड। फ्रेंड्स, दिस इज़ ए प्लाउड फील्ड। ये एक प्लाउड फील्ड है, इसमें हमको देख सकते हैं बहुत सारा क्रम्स है मिट्टी में। जो ये क्रम्स तोड़ने के लिए हम लेवलर यूज़ करते हैं और हम ये मिट्टी को लेवल करते हैं, है ना। वी आर यूजिंग लेवलर टू लेवल द फील्ड। स्टूडेंट्स, नाउ लुक पेज नंबर 3 ऑन योर टेक्स्ट बुक. Now we are going to discuss about the tool plow. Okay, प्लाव मतलब हल। हिंदी में हम प्लाव को हल कहते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. प्लाव एक ट्रेडिशनल टूल है, हम टिलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वीड्स रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और टर्निंग करने के, सॉइल को टर्न करने को भी, पलटने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्लाव को। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। जो प्लाव वुड से बनाते हैं। लुक एट द पिक्चर हियर, यू कैन सी द picture of two bulls. Here we are using a pair of bulls, that is two bulls, okay, for plowing. In some places they are using horses and camels instead of these bulls. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. Now look at the picture of plow. Here you can see a triangular iron strip. It is called as plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. Now you can see a long log of wood. It is called as plow shaft. इसको हम plow shaft कहते हैं. There is a handle at one end of the shaft. ये एक एंड में एक हैंडल रहते हैं और दूसरे एंड में the other end is attached to the beam. दूसरा एंड बीम में अटैच करते हैं. वो बीम आपको देख सकते हैं, बीम पिक्चर में आपको देख सकते हैं बीम का पिक्चर। वो बीम कहाँ रखते हैं, जो बुल्स के नेक में वो रखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाउ। एक फील्ड में ए पेयर ऑफ बुल और एक आदमी है तो हमको वो लोगों को प्लाउ अच्छे से कर सकते हैं। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. Nowadays we are using iron plow instead of this wooden plow. Okay. Next tool is hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. जो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूजन करने के लिए हम ये हो यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. Okay, you can see the rest portion on the page number 4. Take page number 4. You can see the picture of the tool hoe. It has a long rod of wood or iron.
वो एक लॉन्ग रोड देख सकते हैं, वो आयरन का भी होते हैं, वुड का भी होते हैं. ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड. वो दूसरे साइड में एक स्ट्रॉन्ग बेंड प्लेट है, ब्रॉड बेंड प्लेट है, उसका काम क्या है, वो एक ब्लेड के जैसा वर्क करते हैं. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स पुल करते हैं, ये हो एनिमल्स पुल करते हैं. Next tool is cultivator. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. This tool का नाम है cultivator. इसमें प्लाविंग ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से ही जाती है. कल्टीवेटर का उपयोग क्या क्या है, वो श्रम और टाइम, समय दोनों की बचत होते हैं, है ना. वी कैन सेव द लेबर एंड टाइम बाय यूजिंग द टूल कल्टीवेटर. This is the end of our class. Now I am going to share you the question and answers regarding the session. Now look at the question answers. First, choose the correct answer. Question number 1. Which is the traditional tool used for tilling? Option A, seed drill. Option B, sower. Option C, kurpi. D, plow. The answer is plow. Students, I am giving you the answer. You just have to copy the question answers in your notebook, and also you have to learn the question answers. Next, second, which tool is used to break crumbs? जो क्रम्स तोड़ने के लिए हम लेवलर यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन में एक लेवलर का नाम है, वो कौन सा है? कल्टीवेटर, प्लाव, प्लैंक, हार्वेस्टर. द आंसर इज प्लैंक. नेक्स्ट, fill in the blanks. The process of loosening and turning of the soil is called dash. The answer is plowing or tilling. The leveling of soil is done with the help of a dash. It is done with the help of a leveler. Next, question number 3. Wooden plow contains a strong triangular iron strip called dash. जो triangular iron strip को हम कहते हैं plow. Next, question answers. Question number 1. How earthworms and microbes are useful to farmers? Answer. Earthworms and microbes turn and loosen the soil and add humus to it. Thus, they are helpful to farmers. माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स क्या करते हैं, वो टर्न और लूसन करते हैं सॉइल को और एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं. दस दे आर हेल्पफुल टू द फार्मर्स. नंबर 2. हाउ डू द सॉइल ऑर्गेनिजम्स ऐड ह्यूमस इनटू द सॉइल? जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स कैसे ह्यूमस सॉइल में डालते हैं? Soil organisms decompose the dead plants and animals. Later, they produce a thick black substance called humus and it is added into the soil. जो मैंने बोला वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. किसको डिकम्पोज करते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं. लेटर दे प्रोड्यूस ए थिक ब्लैक सब्सटेंस. वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमस एंड इट इज़ एडेड टू द सॉइल. क्वेश्चन नंबर 3. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Loosening of soil allow the roots to breathe easily because it allows them to penetrate into the spaces in between soil particles which have air trapped in them. ये लूसनिंग करने की वजह से वो रूट्स को एकदम अंदर जा सकते और मिट्टी के अंदर में वो क्या क्या स्पेसेस में सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर ट्रैप होते हैं, ऑक्सीजन ट्रैप होते हैं इसके बीच में. वो लूजनिंग करने की वजह से वो रूट्स को अच्छे से वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमस? ह्यूमस मीन्स द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स. It is a thick black or brown substance. Humus has many nutrients which improves the health of soil. एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन की वजह से वो फॉर्म होते हैं. इसका कलर कौन सा है? थिक ब्लैक कलर में होते हैं और ब्राउन कलर में भी होते हैं. न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू इसमें रहते हैं और हेल्थ भी इम्प्रूव करते हैं सॉइल का. नंबर 5. व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन मतलब क्या है?
Decomposition is the process by which dead organic substance are broken into simple organic or inorganic matter such as water, air, mineral, nutrients, etc. जो डिकम्पोजिशन मतलब एक प्रोसेस है, इसमें डेड ऑर्गेनिज्म को हम कन्वर्ट करते हैं, वो दे आर कन्वर्टेड into water, air, minerals, nutrients, etc. Next, question number 6. What is ploughing or tilling? The process of loosening and turning of the soil is called ploughing or tilling. मिट्टी को पलटना और पोला बनाना, इसको हम कहते हैं ploughing, और इसका दूसरा नाम है tilling. Question number 7. Name the tools that are used for ploughing. We use 3 tools for ploughing. They are plough, hoe and cultivator. Last question. What is the advantage of using cultivator instead of plough and hoe? Cultivator saves labor and time, hence they are widely used today. कल्टिवेटर यूज़ करने तो हमको लेबर और टाइम सेव कर सकते हैं, इसीलिए दे आर वाइडली यूज्ड टुडे. जो हम कल्टिवेटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं. Students, this is the end of our class. Hope you all understood the topic that I have discussed today. So, all the students should copy the question answers in your notebook, okay, and learn the question answers. Okay, bye students. We will meet in the next class.